students, welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today in this video we are going to discuss the most important questions from your political science book. Class 9 students, please watch the video till the end and note down the most important questions because they are going to help you out in your exams, in your forthcoming exam, in your annual exams, right? So what you should do, you should go through all the questions that I'm going to discuss over here, and those questions, as I said, are the most probable questions, most likely questions to come in the exams, in the annual exams. So I would request every one of you to just discuss, analyze, learn, and apart from these questions also, if you want to do even better, of course these questions that I'm going to discuss are very much important for those people also, those who haven't studied properly, and even for those who are hoping to do well in their exams, right? Those who are hoping to become toppers, those who want to do excellent performance, right? So they should also watch this video. So in this video I'm going to start with the political science most important questions. So I've taken in all 10 most important questions. Okay, at least the minimum condition would be to learn these questions answers, though I'll discuss with you the main points, the major points of each one of these questions. You have to give the answer in detail. Okay, so let's start. Now the question that I've taken from the first chapter, what is democracy and why democracy? इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ हेडिंग्स में देना होता है. सबसे पहले जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आधार पर अगर हम डिफरेंशिएट करें डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तब हम देखते हैं कि आपको मालूम है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, whereas a non-democratic form of government is not elected by the people. There might not be even any voting also, right? And even though election happens, the elections are controlled by a few group of people, or maybe some powerful people are there, they might be controlling everything, and they would take the decision, they would get the decision of the people in their favor always. So that is another thing, we are not going to discuss that. Plus we can also take up some more points over here. जैसे मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट रहती है, फ्री मीडिया है, whereas नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मीडिया फ्री नहीं होती है. और हम और भी कई सारे हेडिंग्स में, पॉइंट्स में इसको आंसर कर सकते हैं. जैसे हम बात करते हैं कि जो राइट्स की बात करें, सिटीजन्स को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजन्स को राइट्स या तो नहीं मिलते हैं या लिमिटेड मिलते हैं. तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि यही कुछ बिंदुओं के आधार पर, यही कुछ मेजर पॉइंट्स के आधार पर आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्रिएट करना है. ओके, तो 5-6 ऐसे मेजर पॉइंट्स आप ले सकते हैं जिसके आधार पर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये क्वेश्चन जो है इससे अलग है. इसमें हमको ये बताना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर कैसे है. देखिए कई सारे आधार है, कई सारे पॉइंट्स है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी है. यहाँ पर डिसीजन जो है काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर लिया जाता है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिसीजन जो है वो जल्दी जरूर लिए जा सकते हैं, लेकिन नॉट टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग. Okay, whereas in a democratic form of government many people are consulted, so there is a very less chance of error happening, right? And the other points we can say that in a democratic form of government, the citizens dignity is enhanced. Okay, this is one major point. We can also say in a democratic form of government, it always has a scope for improvement. It always, it corrects its own mistakes. Whereas a non-democratic form of government in which a dictator, once he has decided something to do, he would hardly retract from his decision. He would take, there is hardly a chance for him to take back his decision.
because he would take it on his ego. He would not want to take back any decision that he had already taken, plus he would not want to be questioned also. So there are many parameters on which we can say a democratic form of government, which is after all a people's own government, right? What you are learning in this class 9th, of course, always remember these are going to be of great use for your class 10th as well. Okay, so these are the two most important questions. Next questions we are going to discuss. Questions हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविक्स से ही, आपके पॉलिटिकल साइंस बुक से ही, जो सेकंड चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया है, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी साउथ अफ्रीका में, जब साउथ अफ्रीका आप जानते हैं कि जहाँ कलर अपार्थाइड का एक बहुत बड़ा दंश वहाँ के लोग झेल रहे थे, जो वाइट माइनॉरिटी का रूल था, ब्लैक मेजॉरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रूल था और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था. तो ऐसे में जो है बड़े लंबे संघर्ष के बाद जब साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुई, साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसको रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया. क्या बोला गया? रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन. तो रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें नेल्सन मंडेला का जो पॉलिटिकल जो एसोसिएशन है इधर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और भी बाकी लीडर्स ने जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनते हैं. और उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि जो साउथ अफ्रीका है वो सभी के लिए है, वाइट, ब्लैक, कलर्ड, मेन, वुमेन, सब के लिए, चिल्ड्रन, राइट. तो इसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ऐसा किसी तरह का कोई भी ऐसा नहीं है कि ब्लैक लोग बदला लेने की भावना लेकर, जैसे जो जिस तरह की यातनाएं उन्होंने सही है, तो हो सकता है उनके मन में कुछ बदला लेने की भावना हो कि जो वाइट माइनॉरिटीज ने हमारे ऊपर जो अत्याचार किए, हाउ दे हैड एक्सप्लॉइटेड अस, हाउ दे हैड डेल्ट विद अस सो क्रूली, राइट. सो they might think of taking revenge, right? So this was the thinking that we have to understand, that here they could have, the black majority, now the black could have had their ways, but here the kind of constitution that was made, that was meant for all. It was all inclusive. So it taught the whole world. It became a model for the whole world. The constitution in South Africa became a model for the whole world. तो एक तरह से पूरे दुनिया के लिए एक मॉडल बना कि किस तरह से जो है जिस कंट्री को अभी कुछ दशकों पहले तक जो है लोग डिनाउंस कर चुके थे, दूसरे कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वहाँ जाना भी पसंद नहीं करते थे, इग्नोर करते थे साउथ अफ्रीका में. तो वहाँ पर जो है इतने बड़े जो सभा की जा रही है और जहाँ पर नेल्सन मंडेला जो है ओथ लेने जा रहे हैं और साथ में उनकी गवर्नमेंट फॉर्म करने होने जा रही है, तो यहाँ पे आप ये देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ बन रहा है, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो सिटीजन्स को इतने सारे राइट्स दिए गए हैं, एक्सटेंसिव राइट्स दिए गए हैं. तो इसी वजह से जो है एक तरह से साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक मिसाल बनी, राइट. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड इट. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वी जनरली अंडरस्टैंड से बुक ऑफ रूल्स, एक तरह से रूल बुक है, राइट, जिसमें लोग एक सोसाइटी में किस तरह से रहें, कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, राइट. तो इस तरीके से जिस तरह से एक गेम का भी एक रूल होता है, उस तरीके से आप ये देखोगे एक ऑर्गेनाइजेशन के भी रूल्स होते हैं. तो जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसमें हम ये देखेंगे कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं वो कुछ कॉमन रूल्स पे अग्री करें और सभी को उसको फॉलो करना होगा. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? ताकि हम अपने एस्पिरेशंस को मीट कर पाए, एस्पिरेशंस को पूरा कर पाए. और गवर्नमेंट की भी ज़रूरत होती है. गवर्नमेंट भी जो है उन्हीं गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस होती है, उन गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए गवर्नमेंट चले, राइट. तो इस तरीके से कई पॉइंट्स के आधार पर हम इसको आंसर कर सकते हैं. यहाँ मैं आपको मेजर पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है, व्हाई शुड बी एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, राइट. और क्यों हम एक्सेप्ट करें जो इतने साल पहले बनाई गई. तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जो इतने साल पहले बनाई गई उसका आज भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बात करें तो इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो समय लगा है 2 years 11 months 18 days, इसमें हर तबके के लोगों का जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी जिस टाइम जो हमारे लीडर्स थे, दे आर
they were the people with great foresightedness. So though there was not universal, I would say, whoever were the members in the Constituent Assembly, they were hailing from different classes. So there was a voice in the Constituent Assembly from all the classes there, right? Each and everyone's concern was there. So we would also say that, the Constituent Assembly, since it took such a long time also to frame such a constitution for a country like India, so it produces a kind of respect, right? Because the sanctity, the manner in which it was made, right? Each and everything was discussed, debated, clause by clause. So you can understand that, so much of effort has been put in, and there has been, I would say, the representation has been also meaningful of all the people, right? Of all sections of people. तो इस तरीके से जो है आज भी जो है ऐसा नहीं है कि कोई इतने साल बनाया तो आज जो है ऑब्सोलीट हो गया. तो इसमें आप ये देखोगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं हमारे, उन्होंने इसमें स्कोप भी रखा है कि जरूरत पड़ने पर इसमें चेंजेस, राइट? जो चेंजेस जरूरी है, बदलते समय के साथ जो भी चेंजेस जरूरी है वो भी किए जा सकते हैं, राइट? और जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लोगों को, हालांकि कुछ ऐसी चीजें भी रखी गई हैं जो जैसे फंडामेंटल राइट, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते. और आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से लोगों के अधिकार दिलाने का भी काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है. तो आज भी जो है कहीं पे भी किसी भी वंचित के साथ, किसी भी जो भी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, कहीं पे भी उनकी राइट अगर वायलेट हो रही है, कहीं पे भी अगर उनके साथ शोषण हो रहा है, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन को ही वो इन्वोक करके जो अलग अलग राइट्स उनको मिले हैं, तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करके, कई आर्टिकल्स को इन्वोक करके, राइट, वो अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं. तो एक तरह से ये आपका जो है आज भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं करते, राइट? द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस are the questions from your chapter in political science, electoral politics, right? Which are the questions? Let me discuss with you. Question number 6, what makes an election democratic? तो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कौन सी चीजें बनाती है, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है? हमें उन पॉइंट्स में इस क्वेश्चन को आंसर करना है. जैसे हम बात करते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस आर बीइंग कंडक्टेड, समटाइम्स it is not happening regularly. Like we have in our country, elections are happening after every 5 years, right? If you talk about the general elections, got it? There are no other forms of elections also, like by-elections, midterm elections are also there. But we have to say that elections should be conducted in a free and fair manner. That is also a very necessary condition for elections to be called a democratic elections. Okay? There should be some meaningful choice. मीनिंगफुल चॉइस का मतलब यह है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, राइट? इट इज नॉट दैट द कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस दे ऑल आर टेंटेड, दे ऑल आर having some criminal background, or if there is nothing to choose from, means if you go to market, if you want to purchase vegetable, or if you want to purchase some apples, if all apples are rotten, then what is the point of purchasing those apples? In the same way, we have to understand that in an election also, when candidates, those who are contesting election, they need to be significantly different from one another so that people have a reason to vote for them. Got it? Next, we are going to discuss, yes, one more thing, that those who people think should win, they should find it easy to, I'm not saying that, they should find it easy. We should rather think it in this way, that those who are liked by people, or the candidate who is preferred by the people, should be able to win. Okay? All these are there. And on that we can answer this question. Question number 7 में क्या है? What makes elections in India democratic? Generally हम इस क्वेश्चन के जो पॉइंट्स है इसमें लिख देते हैं और इसके पॉइंट्स इसमें लिख देते हैं. तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन से कंडीशंस है जो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं उसको डेमोक्रेटिक बनाते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि आप इसमें आंसर्स इंटरचेंज कर दे, दोनों क्वेश्चंस अलग है. इसमें बोला जा रहा है व्हाट मेक्स, इन जनरल वे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी इलेक्शंस कराती है, बट
सिर्फ इलेक्शन करा लेने भर से ही कोई कंट्री डेमोक्रेटिक बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी जो कंडीशंस है वो पूछे जा रहे हैं कि वो कौन से कंडीशंस मीट करने, ठीक है। यहां पर ये पूछा जा रहा है कि इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया में ऐसे कौन से कंडीशंस है जिसकी वजह से इंडिया के जो इलेक्शंस है उसको हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। तो इसमें कई पॉइंट्स में हम इसको आंसर कर सकते हैं। जैसे इंडिया के पास जो है एक पावरफुल इलेक्शन कमीशन है, ओके। तो इलेक्शन कमीशन के पास वाइड रेंजिंग पावर्स है। आप ये देख सकते हैं कि जब एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो सरकारें जो है वो बड़े डिसीजंस नहीं ले सकती है, या कोई फाउंडेशन ले नहीं कर सकती है, स्टोन फाउंडेशन नहीं कर सकती, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी बड़ा प्रोमिस नहीं कर सकते। और आप ये देखेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जिनको कहाँ पोस्टिंग करनी है, किनको कहाँ शिफ्ट करना है, किनको कहाँ पर पूरा मैनेज करने का काम भी जो है आप ये देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के तहत जो है सारे फैसले लिए जाते हैं, राइट। तो एक तरह से उस टाइम गवर्नमेंट जो है एक तरह से स्टैंड बाई मोड में रहता है। हालांकि उसके पास पावर्स तो रहते हैं लेकिन वो रियल पावर्स नहीं होते हैं जैसे नॉर्मल टाइम में होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन एक बहुत पावरफुल एजेंसी है जो इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन दैट इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। अपॉइंटमेंट जिसमें होता है चीफ इलेक्शन का, उसमें प्रेसिडेंट जरूर अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक बार जब अपॉइंट हो जाते हैं तो जिस तरह से प्रेसिडेंट को भी हटाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे जो है इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाना मुश्किल हो जाता है। इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है, वहां पर ये सारी डिटेल डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं अभी। फिलहाल जो है दूसरा जो पॉइंट बोलते हैं आउटकम्स ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है हमारे यहाँ पे, उसका ये देखेंगे कि हमेशा जो है जो लूजिंग पार्टी है वो ये मान के चलती है कि एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती है। वो बोलती है कि जो भी जनता का आदेश है हम उसको बिल्कुल सर झुका के एक्सेप्ट करते हैं। तो एक तरह से जो इलेक्शन से पहले कितना भी लड़ लेंगे आपस में, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेमिंग भी करेंगे, सारी तरह की बातें करेंगे, लेकिन एक बार इलेक्शन का रिजल्ट आउट हो जाता है तो आप देखोगे किस तरह से पूरी शांति हो जाती है। और उसमें कोई भी जो लीडर, आप अगर कोई इस तरह की बातें करता है कि अगर आजकल जैसे हम ईवीएम के थ्रू वोटिंग करते हैं तो बोल भी देते हैं कई बार, लेकिन वो इमेच्योर कमेंट्स होते हैं, उसमें कई बार वो पार्टी लाइन वाली बात नहीं होती। कोई इंडिविजुअल लीडर कुछ बोले, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, व्हाट इज द लाइन ऑफ द पार्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम जनरली ये देखते हैं इंडिया का जो इलेक्शन रिजल्ट वो हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। और एक और पॉइंट है जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि इलेक्शन जो है इंडिया में उसका जो वोटर टर्नआउट कितना है। तो साल भर साल जो है वोटर टर्नआउट जो है या तो स्टेबल रही है या हमेशा बढ़ा ही है। तो इस तरह से लोगों का अगर मान लीजिए इलेक्शन में विश्वास नहीं रहता, इलेक्शन सिस्टम में विश्वास नहीं रहता, तो इस केस में आप ये मान के चलिए कि लोग वोट देने भी बाहर नहीं आते, राइट। क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोगों को डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीफ है, इंडिया के लोगों को इलेक्शन सिस्टम में बिलीफ है। तो इसलिए ये भी एक कारण है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई तरह के चैलेंजेस जो है, जैसे छोटी पार्टियां होती हैं अक्सर उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, बड़ी पार्टियों के पास रिसोर्सेज ज्यादा होती है और वो अपने आप को ज्यादा शो भी करा सकती है, लोगों के सामने ज्यादा दिखते भी हैं। आप ये मान के चल सकते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। तो छोटी पार्टियों को एक डिसएडवांटेज जरूर है, एक बड़ा चैलेंज है। डायनेस्टिक सक्सेशन का भी अगर हम बात करते हैं कि कई बार होता है कि पॉलिटिकल पार्टी में जो सक्सेशन होता है किसी लीडर का बेटे को ही मौका मिल जाता है या उसके रिलेटिव्स को मौका मिल जाता है। नेपोटिज्म जो है वो देखने को, भाई भतीजावाद जो है नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स है। मनी एंड मसल पावर का भी प्रॉब्लम है, राइट। तो ये सारी चैलेंजेस है। मीनिंगफुल चॉइस का भी ना होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जो है आप ये देखेंगे ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं मैंने जो यहाँ नोट किए हुए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू शुड प्रिपेयर वेरी वेल फॉर देम एंड प्लीज रेफर टू NCERT and the notes given by your teacher, right? They'll help you and you can go through these questions, you can prepare yourself for these questions so that you can score well in your social science. The next most important questions from your civics book that I've written over here, the one question is there from your electoral politics chapter and the remaining two questions are there from the last chapter, democratic rights. All right, children, I had mentioned earlier here 10 most important questions. I had just now I've added one more important question over there
So in all, there are 11 important questions. Okay, so sorry for that, but let me tell you, this question also I feel that is very, very important, the 11th question that I've added from your last chapter, democratic rights. Okay, so starting with the question number 9, the outcomes of India's election outcome speaks for itself. Comment. There are many children who might not have understood this question, right? They don't understand what this question is actually asking. इसमें ये पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो अपने आप में ही ये गवाही देती है कि इलेक्शन हमारे यहाँ पर कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से और कितने बेटर तरीके से किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, राइट? जो हमें किसी दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं, जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो अपने आप ही इस बात की गवाही देती है. जैसे ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि वो कौन से पॉइंट्स है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का इलेक्शन रिजल्ट्स हैं दे देमसेल्व्स आर द लिविंग टेस्टिमनी टू हाउ और द मैनर इन विच इलेक्शंस इन आवर कंट्री is conducted. Okay, so let us just discuss this. Outcomes of India's election outcome speaks for itself. मतलब जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है आप ये देखेंगे कि ज्यादातर सिटिंग एमपीज और एमएलएज इलेक्शंस हार जाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि आप देखो मैक्सिको का एग्जांपल देखेंगे कि वहां पर जो पीआरआई था, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, वो हमेशा इलेक्शन जीतती रही थी अंटिल 2000. उसमें हारने का कोई चांस नहीं था, तो उसको आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं बोल सकते. उसमें रूलिंग पार्टी हमेशा जीतती रही है. बट यहाँ पर जो है सिटिंग एमपी और सिटिंग एमएलए हमेशा अक्सर इलेक्शन हार जाते हैं. यहाँ तक कि जो कैंडिडेट जो कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं या टेंटेड हैं वो भी इलेक्शन जीते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो भी अक्सर इलेक्शन हार जाते हैं. हम देखेंगे कुछ इलेक्शंस को अगर छोड़ दें तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि इंडिया का जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो हमेशा से ही इस बात की गवाही रही है, उसकी हमेशा से ही इस बात को वैलिडेट करता रहा है कि हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाता है वो वाकई में ही डेमोक्रेटिक तरीके से कराया जाता है. जबकि आप देखो यूएस में या दूसरे कंट्रीज में कहीं एक बार कोई अगर जीत के आ जाता है तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. हमारे कंट्री में एमपीज या एमएलएज के जो मन में हमेशा ये डर रहता है कि अगर हमने लोगों के लिए काम नहीं किया तो लोग हमें नकार देंगे, राइट? तो इसलिए जो है एक प्रेशर लोगों के ऊपर है, एमपीज एमएलएस के ऊपर है कि दे हैव टू वर्क फॉर द पीपल. ओके, दे हैव टू वर्क फॉर द पीपल. इफ दे डोंट वर्क फॉर द पीपल दे गोइंग टू लूज, बिकॉज इन इलेक्शन वेदर इट इज अ रूलिंग पार्टी, of course normally we would say that ruling party may have some advantages, but here our election commission provides all the parties a level playing ground. Okay, though there might be political allegations, these will keep on happening, right? But once election results are out, as I said in the previous slide also, all political parties they accept the result of the elections as people's verdict. Okay, so this is a very important question. You should prepare yourself for this question. Next question is, the right to constitutional remedies is the heart and soul of our constitution. Dr. B.R. Ambedkar has made this statement regarding the right to constitutional remedies. That is one of the 6 fundamental rights provided to us by our constitution. Okay, Dr. B.R. Ambedkar, as you know, he was the chairman of the drafting committee and he had said this. So that holds a lot of weight. Why it is said so? Because it is this right only on the basis of which all other rights are dependent. मतलब यही वो राइट है जिसके आधार पर बाकी राइट जो है वो मीनिंगफुल होते हैं. आप ये देखेंगे कि अगर आपके बाकी जो 5 राइट्स हैं, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये सब राइट अगर आपसे कभी अगर छीने जाते हैं तो उस केस में आपको एज ए टूल, एज ए वेपन कौन सा राइट यूज करते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो अलाउ करता है कि आप कोर्ट जाएं, राइट? और अगर आपका राइट वायलेट होता है तो उस केस में आपको अपने राइट को दोबारा रीस्टोर करने के लिए इस राइट का यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू हैव टू स्टडी फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, as I said, the notes provided by your teacher as well as the NCERT, because NCERT is enough, right? You can take help from some sample paper and all that, that is fine. But as I said earlier also, now I am also telling you that you should always correlate whatever you are learning from, wherever you are learning from, you should correlate it with NCERT. Okay, and for definitely there is no shortcut to success. This you must take.
right? This is my a very popular saying. So we have to really work hard to score well in every subject. Here, just to help you out, I have given you some important questions. You can just make up your mind. You can just think around these questions only and can give answers for these questions. The last question here that we are going to discuss is, what are rights? Why do we need rights in a democracy? So very simple question is being asked, and I think every one of you must prepare for this question's answer. Rights are reasonable claims which are given by the, which are sanctioned by the law, and which are approved by the, which are acknowledged by the society. So rights are the reasonable claims. We have to define rights. Why do we need rights? Rights are needed so that, you know, we are not treated only as subjects, we become citizens. To get the status of citizen also we need rights. Plus rights are needed to protect minorities from the possible operation of majority. So rights help us, you know, achieve our dreams or achieve our goals. If, see, we people are born with rights, fundamental rights that are given to us. We might not understand the importance of these rights, but we will realize its importance only when it is taken away from us, right? So you have to answer this question by reading the part that is there in your NCERT book only. So this is it from me now. You should prepare very well for these questions. Hope you like the video, and those who are new on the channel, please do subscribe the channel. Thank you so much for being with me.